Alright, good morning everyone. How are you doing? I hope you all are doing well at your places. So let's just start with our class today. This is exercise 14.3, question number 3. This is exercise 14.3, question number 3. We have discussed question number 1 and 2, and I hope everybody tried the questions where you were finding. You need to find median, right? So you must be knowing how to find median. So in this question, we have got data like this: below 20, this is age in years. Then we have below 25, below 30, below 35, then 40, 45, 50, 55 and 60. We have got question data like this, and this is number of policy holders. Number of policy holders. It is given to you 2, 6, 24, 45, 78, 89, then we have 92, 98 and 100. Okay, and we need to find the median. In this question, we need to find the median. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 years. And we need to find the median of this data. Now you will say, ma'am, what is so difficult in this question? It's the same question. Median we need to find. We know the formula L plus N upon 2 minus CF upon F into H. This is the formula. I know you all know the formula, but in this formula, you just need to find, to use this formula, you just need to find the median class. Where is the class? We don't have the class. And here, to use this formula, we need to use frequency also. Where is frequency? We don't have the frequency. Now just look here. ये जो दिया हुआ है, this is not frequency, this is cumulative frequency. कैसे पता चला? देखो, below 20 आपने एक साथ लिया है, below 25 को एक साथ लिया है, below 30 को आपने एक साथ लिया है. So this is cumulative frequency. This is not frequency, and this is not class interval. तो हमें पहले class interval find out करना पड़ेगा, and frequency we just need to find. So how are we going to do below 20? अब below 20 0 to 15 भी हो सकता है, 15 to 20 भी हो सकता है. So we will take 0 to 20. माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि एज की बात हो रही है. So just look here, class interval. I'm just doing it here. So class interval क्या होगा? Just look here. So I'm going to write this 0 to 20. Then below 25. देखो यहाँ 20 तक हमने लिया है, तो next will be 20 to 25. Then we have 25 to 30. Then 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and then we have 55 to 60. Okay class, now this is cumulative frequency. हमको क्या निकालना है? Frequency. हमारी पहले वाली टेबल में क्या होता था जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे? We were having class interval, we were having frequency, and then we were calculating the cumulative frequency. But here we don't have the cumulative frequency, right? So how are we going to do it? Just here we don't have the frequency. So first we will find out the frequency. देखो class, जो पहली cumulative frequency होती थी वो it is always equals to frequency, है ना? होती थी ना? उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. आप कैसे करते थे जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी? आप करते थे 2 प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस. ऐसे यू वर एडिंग ना, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी मिल जाए. 2 6 minus 2 is 4. 24 minus 6 will be 18. Then 45 minus 24 will be 21. Look here. Then 78 minus 45 is what? Minus 5, 3, 7 minus 4, 33. Then we have 89 minus 78, which is 11.
then we have 92 minus 89, which is 3. Then we have 98 minus 92, which is 6, and then 100 minus 98, which is 2. देखो, again I am telling you, हम cumulative frequency add करके we were calculating. Then we need to, when we have got cumulative frequency, to find out the frequency we will subtract, right? So how would we subtract? Just have a look here. It is like this. Just look here. ये cumulative frequency थी, first frequency इतनी रहेगी. Then second frequency, when cumulative frequency is given, we are calculating the frequency. 6 minus 2, 4. 24 minus 6, 18. 45 minus 24, 21. 78 minus 45, 33. 89 minus 78, 11. 92 minus 89, 3. 98 minus 92, 6, and 100 minus 98 is what? 2. So that's how we are going to find out the frequency, right? अब तो बहुत इजी है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमको ऑलरेडी पता है. देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 2 plus 4 6, 6 plus 18 24. ये चेक कर रही हूँ देखो, यही तो दी हुई है हमको. 24 plus 21 45. आपको जब फ्रीक्वेंसी दी हुई थी तब आप क्यूमुलेटिव ऐसे ही तो निकालते थे. 45 plus 33 78. 78 plus 11 will be 89, right? 89 plus 3 92. 92 plus 6 98, and 98 plus 2 100. ये देखो, ये तो दी हुई थी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आपको दिया होता है बिलो 20 और मोर देन 20, आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए हैं, है ना? इट मीन्स यू हैव नॉट गॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देन यू नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टू फाइंड आउट द मीडियन. अभी देखो, हमको फ्रीक्वेंसी कैसे पता चली? 2 6 minus 2 is 4. 24 minus 6 18. 45 minus 24, it's like this. तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ऐसी तो होती थी हमारी टेबल. बस अब हमको क्या करना था? पहले 100/2 which is 50. हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50, तो इस टेबल का यूज करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 78. ये हमारी मीडियन क्लास में. And then we can apply the formula L plus n/2 minus CF. We are not going to use this table. Now we will use this table. So how would we find median now? Median is equals to L plus n/2 minus into H. L is lower limit of median class. ये हमारी median class है, right? Then we have n/2, 100/2 which is 50. CF ये वाली नहीं लेते हैं, ऊपर वाली लेते हैं. अपॉन F. F क्या होगी हमारी? फ्रीक्वेंसी 33. फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेते हैं, यू रिमेम्बर, इनटू H. और H क्या हो जाएगा हमारा? 5. So you will get 35. Then 50 minus 45 is what? 5 upon 33 into 5. So you will get 35 plus 25 upon 33, or this you need to solve it by your own. I hope everybody can do it. Okay, so that's how you are going to do this question, है ना? पहले कैसे करोगे? जब भी आपको लेस देन या मोर देन लिख के आपको डेटा मिल रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी, इट्स जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है तो वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, है ना? अभी आई हैव जस्ट डिस्कस्ड लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी मैं मोर देन टाइप भी आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, ऑलराइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हिंट दूंगी मैं. इट्स नॉट दैट टफ, बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उसमें बस डेटा कंटिन्यूस नहीं है, वी नीड टू मेक इट कंटिन्यूस. दैट्स इट, नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन. I want every one of you to just try these questions and ask your doubts. सिर्फ मेरे समझाने से नहीं आएगा. देखो, इस क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉब्लम है. सब कुछ पता है हमको, डेटा भी दिया, आई मीन फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, बट हमारा क्लास इंटरवल इस तरीके से दिया हुआ है. जस्ट लुक हियर. इस तरह का, आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग. ओके,
दिस इज 3, 5, 9, 12, इट्स लाइक दिस। हमको मीडियन निकालना है, राइट? वी नीड टू फाइंड द मीडियन। सो फॉर फाइंडिंग द मीडियन डेटा शुड बी कंटिन्यूअस। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कंटिन्यूअस? देखो 118 टू 126, इसमें कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 118 एंड लेस देन 126। अगर हम बात करें कि 126 कौन से क्लास इंटरवल में जाएगा, तो इसमें नहीं जाता है, लेस देन 126, और यहाँ पर भी 126 नहीं है, राइट? जब तुम डेटा देख रहे थे इट वाज लाइक 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 15, इट वाज लाइक दैट। बट यहाँ पे 126 यहाँ अपर लिमिट है, बट यहाँ लोअर लिमिट 127 है, इट शुड बी सेम, है ना? तो डेटा को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट this is 126 minus 127, just look here, this is 118 to 126, देखो, then we have 127 to 135 and 136 to 144, it's like this, है ना? तो डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट का डिफरेंस निकालेंगे, विच इज 1। कुछ भी हो सकता है वो डिफरेंस 5 का हो, उसका हाफ हम लेते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2। 1/2 is what? 0.5। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस 1 था, डिवाइडेड बाय 2, आपको क्या मिला? 0.5। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको लोअर लिमिट्स जितनी उनमें से माइनस करना है 0.5 और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट लुक हियर, 118 माइनस 0.5 यू विल गेट 117.5, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 126.5। अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है। अगेन 127 माइनस 0.5 यू विल गेट 126.5। सेकेंड क्लास की बात करें, 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इधर ऐड करूंगी। Here also this is going to be 135.5, देखो 136 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, so you will get 135.5 and here you will get 144.5। देखो अब डेटा कंटिन्यूअस हो गया, इट्स लाइक दिस, और हमारी दिस विल रिमेन सेम। उसके बाद हमको सब निकालना आता है। अगर डेटा कंटिन्यूअस है, आप यू विल कैलकुलेट CH जैसे हम पहले करते थे, सेम वी आर गोइंग टू डू इट। Okay, so I want every one of you to just try this question. Doubt you can always ask me. All right. Now moving on to next question. Next exercise, I must say. Now we are going to talk about ogives. What are ogives? I'm just telling you. देखो, जब हम ग्राफिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? फ्रीक्वेंसी को नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो वी विल गेट अ कर्व जिसको हम बोलते हैं ओजाइव्स। क्या बोलते हैं? ओजाइव्स बोलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस देन और मोर देन दोनों होगा। अभी तक तुमने सिर्फ लेस देन पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, है ना? उनको जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आई जस्ट लेट यू नो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ओजाइव। हम क्या बोलते हैं उसको? ओजाइव बोलते हैं उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। अब अगर हम ओजाइव्स जब निकालते हैं, आई मीन व्हेन वी ड्रॉ ओजाइव्स, व्हेन वी रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ, सो we can find out the median using that ogive or graph, I must say. Okay, so I'll just let you know how to do it. So I am taking a question from your book, exercise 14.1, question number 1 I am just discussing. Although इसमें less than type है, but I am just explaining कि क्या है ogive, है ना? एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Okay, this is class interval. I'm not writing it class interval and everything. This is 6 and 10. देखो, you need to convert the distribution to less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive. तो तुमको पता है कि less than कैसे कैलकुलेट करते हैं ना? पहले हमको what we were doing, हम सीधा cumulative frequency कैलकुलेट कर रहे थे, है ना? अभी भी हम वही करने वाले हैं। Just look here, less than type बनाना है हमको, है ना? तो आप कैसे लिखोगे?
लेस देन 120। ऑब्वियस है 100 to 120 में लेस देन टाइप की बात करें तो लेस देन 120 लोगे। देन वी हैव लेस देन 140, लेस देन 160, then we have less than 180, then we have less than 200। है ना, मैंने तुमको बोला ये तो क्लास इंटरवल था, जब भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप हमने पढ़ी है, which is first will remain 12, then 12 plus 14 26, then 26 and 8 this is going to be 34, then 34 and 6 40, 40 and 10 50। I hope you all remember this thing। So this is less than 120, less than 140 हमने एक साथ लिया, less than 160 को एक साथ लिया। It's like this। This is less than type cumulative frequency distribution। But अभी हमको ऊंचाई बनाना है। So how do we draw ऊंचाई? I'm just telling you। ग्राफ की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं हो रही। सो आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, OX1। ऑलराइट, अब हम प्लॉट क्या करेंगे? जस्ट हैव अ लुक हियर व्हाट वी नीड टू प्लॉट। हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी विल प्लॉट ऑन वाई एक्सिस एंड क्लास इंटरवल वी आर गोइंग टू प्लॉट। आई मीन जो भी हमने लिया है लाइक लेस देन 120 140 जो लिया है, this we are going to plot on x axis। so how we are going to do it? just have a look here। देखो, alright, अच्छा, do you think मैं यहाँ पे 120 लेके सीधा 140 ले सकती हूँ? can I do it? no, I cannot do it। देखो, रूल्स नहीं चेंज हुए जो ग्राफ में प्लॉट करने के थे। यू रिमेंबर आपको क्या करना होता है? यूनिट शुड बी सेम। यहाँ पे 120 का डिफरेंस है और फिर तुम 20 का डिफरेंस ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनाओगे? यू विल ड्रॉ अ किंग। अंडरस्टूड? और किंग के बाद सपोज आई एम टेकिंग 100 हियर, देन 120 20 का डिफरेंस ले रही हूँ, देन वी हैव 140। देखो 120 140 160, यानी आपको अपर लिमिट्स लेनी है व्हेन यू ड्रॉ ऊंचाई फॉर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 160 के बाद वी हैव 180 एंड देन वी हैव 200। ऑलराइट, now what about this cumulative frequency? cumulative frequency हम किस पे लेंगे? y axis पे लेंगे। कैसे लेंगे? I'm just telling you that। okay, so कैसे लेंगे y axis पे? just telling you that। I'm just repeat this क्योंकि अब इसका यूज नहीं है। suppose now unit, suppose I am taking 1 unit is equals to 10 whatever it is giving, 10 years or whatever it is। तो मैं 1 यूनिट को 10 के इक्वल लेके चल रही हूँ। सो दिस इज 30, देन वी हैव 40 एंड देन वी 50। नाउ 120 के रिस्पेक्ट में यू नीड टू प्लॉट 12। देखो, x कोऑर्डिनेट ये होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा। सेम चीज है जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और पहले ग्राफ जैसे प्लॉट किया करते थे, बट दिस टाइम व्हाट आर वी गोइंग टू प्लॉट? वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस लोअर अपर क्लास लिमिट ऑन x एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन y एक्सिस। कैसे? अभी देखो 120 और 12, तो x की वैल्यू 120 एंड सपोज समवेयर हियर 12, है ना? दिस इज 10 11 12, सपोज 12, देन 140 26, 140 पे यू हैव अ 26, सपोज यहाँ पे 140 26, देन वी हैव 160 to 34, 160, देन वी हैव 34, इट्स लाइक दिस, देन वी हैव 180 40, 180 पे we have the value 40 and then you will not get a straight line, don't get confused। मैंने स्केल नहीं ली हुई है, सीधा यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए कर्व you will get। okay, 200 पे we have 50, suppose this is 200 and we have 50 here, it's like this, है ना? अब क्या करना है आपको? सिर्फ इसको प्लॉट करना है। क्या करना है? इसको ज्वाइन करना है। you will get a curve, you will not get a straight line, remember this, you will not get a straight line। तो इस तरीके से जब हम प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे? अपर क्लास लिमिट को x एक्सिस पे लेंगे, 120 140 160 180 200, और दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम x एक्सिस y एक्सिस पे लेंगे। दिस इज व्हाट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, हमको एक फ्री हैंड से हम ज्वाइन करेंगे, विल गेट अ कर्व। ये तो हमें मिला फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी, ऊंचाई। नाउ sometimes they might ask you that you need to find median using this
ऊंचाई. सो हाउ वुड यू कैलकुलेट मीडियन यूजिंग दिस ऊंचाई? उसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे n अपॉन 2. सो यू विल डू 50 अपॉन 2 विच इज 25. 50 अपॉन 2 इज व्हाट? 25. अब क्या करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कहाँ पे प्लॉट की थी? y एक्सिस पे. यू विल लुक फॉर 25 ऑन y एक्सिस. 25 कहाँ होगा? यहाँ पे. इसको हम एक्सटेंड करेंगे, है ना. we'll draw from 25 we'll draw a line which is parallel to x axis. वो जहाँ पे भी इसको कट करेगी, इस कर्व को जहाँ पे भी कट करेगी, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू हमें एक्स एक्सिस पे मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी आवर मीडियन. दैट विल बी आवर मीडियन. अगेन आई एम टेलिंग यू क्लास, आई एम नॉट इन द क्लास बट स्टिल आई वांट you to pay attention whatever I am teaching. Just look here. So what are we going to do? सबसे पहले n upon 2 you will calculate which is 50 upon 2 which is 25. हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ प्लॉट की थी? y एक्सिस पे. तो आप 25 ये रहा. 25 यहाँ पे you will take this point and you will draw a line which is parallel to x axis. जहाँ पर भी कट करेगी इस कर्व को, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी x पे वैल्यू होगी, x एक्सिस पे जब भी हमारा मिलेगी हमें यहाँ पे वैल्यू, the coordinate we will get, है ना, x coordinate जो भी होगा that is going to be our median. Okay, now I am taking one more question which is related to more than type cumulative frequency distribution. Okay, I am taking a question from your book only. Okay, question number 2 देखो. Question number 2, during the medical checkup of 35 students their weights were recorded as follows. उनके weights दिए हुए हैं. तो डू यू थिंक इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है? नो. दिस इज लेस देन 38, लेस देन 40. ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सीधा सा आपको प्लॉट करना है. ओके, आपको सीधा प्लॉट करना है ना. क्वेश्चन नंबर 2 में यू डोंट नीड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऊंचाई यू नीड टू फाइंड. तो इसमें आप व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल प्लॉट 38, 0, 40, 3, 42, 55. आई एम सॉरी, इट्स लाइक दिस. Now I am taking third question because इसमें more than type cumulative frequency distribution है and I just want to explain you that. Okay, so class interval I am writing 50 to 55, then we have 55 to 60, then we have 60 to 65, then we have 65 to 70, then we have 70 to 75, and then we have 75 to 80, है ना. And this is 2, 8, 12, 24, 38 and 16. अब आप more than type cumulative frequency distribution you are making, है ना. This is more than type CF distribution, है ना. So how are we going to do it? Just have a look here. ऐसा कुछ टफ नहीं है, don't get confused. सबसे पहले मोर देन टाइप की हम बात करेंगे. तो एक बात बताओ, मोर देन कौन सी वैल्यूज है? 50 टू 55 में अगर आप बोलोगे तो मोर देन 55 तो नहीं बोलोगे ना इस क्लास इंटरवल में. यू विल टेक मोर देन 50. सो मोर देन और इक्वल्स टू 50. मोर देन इक्वल्स टू 50. यानी आप लोअर क्लास लिमिट्स लेते हो जब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देन मोर देन इक्वल्स टू 55. देन मोर देन इक्वल्स टू 60. देखो मैंने लोअर क्लास लिमिट्स लिए. मोर देन इक्वल्स टू 65, मोर देन इक्वल्स टू 70, मोर देन इक्वल्स टू 75. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप की तरह नहीं बनानी है, मोर देन लेना है. सो बहुत इजी सा तरीका बता रही हूँ बेटा, हाँ बहुत इजी है. हाउ वुड यू स्टार्ट? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप लेस देन टाइप निकाल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप ऐसे ऐड कर रहे थे 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 24 46, ऐसे कर रहे थे. यहाँ पे कुछ नहीं करना है. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप कैलकुलेट करोगे, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नीचे से स्टार्ट करो. 16, देन 16 प्लस 38. जैसे आप ऊपर ऐड कर रहे थे 2 प्लस 8, इट्स लाइक दिस ओनली. 16, देन 16 प्लस 38 कितना होगा? 16 प्लस 38 इज गोइंग टू बी, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, 1
then we have, just look here, 16, then 16 plus 38 is 54. आप ऊपर क्या करते थे, आप ऐसे लेते थे 2, 2 plus 8 10, 10 plus 2 12 is, it's like this. सेम चीज में यहाँ पे भी कर रही हूँ, देखो यहाँ 16, then 16 plus 38 54, then 54 plus 24. क्या कर रही हूँ मैं now? 54 plus 24 which is 78, है ना? फिर 78 plus 12 which is what? 90. Then 90 plus 8 is 98. Oh, I have just here. 54 plus 24 is going to be 78. Then 78 plus 12 is what? 90. Then 90 plus 8 is 98. And then 98 plus 2, 100. Again, I am just explaining. It's very much easy. देखो बहुत इजी है. आप मोर देन टाइप, लेस देन टाइप में क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं 2, 2 plus 8 10, 10 plus 12 is 22. इट्स लाइक दिस. लेस देन में ऐसे करते थे, मोर देन में कुछ नहीं करना है. यहाँ से स्टार्ट करो. ये 16, 16 plus 38 54, 54 plus 24 78, 78 plus 12 90, 90 plus 8 98 and 98 plus 200. तो ये हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है? मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव गॉट. नाउ अब क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. जैसे अभी ग्राफ प्लॉट किया था हमने, ऊंचाई बनाया था, सेम वे वी आर गोइंग टू डू दिस आल्सो. क्या किया था? x एक्सिस एंड y एक्सिस वी हैव टेकन. अब की बार हमको ये लेनी है लोअर क्लास लिमिट्स. सो वी विल टेक 55 60 दीज ऑन x एक्सिस. ओके, एंड ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम y एक्सिस पे ले रहे थे, वही लेनी है. सो जस्ट लुक हियर. देखो पहले मैं किंग बनाऊंगी क्योंकि देखो 5 5 का डिफरेंस है. सो इट्स लाइक दिस. मैंने 50 लिया, फिर 55, देन वी हैव 60 65, ओके, 70 एंड देन 75. इट्स लाइक दिस. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी नीड टू प्लॉट ऑन y एक्सिस, है ना. So unit I am going to take 10 units, है ना. 1 unit is equals to 10. They are talking about what? They are talking about production yield in kilogram hectare. Okay, per hectare. So just look here. Here I am going to take 1 unit. ग्राफ की जो 1 यूनिट है, मतलब वो 1 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल ले रही हूं मैं? आई एम जस्ट टेकिंग इट इक्वल्स टू 10. किसके लेके इक्वल ले रही हूं मैं? 10 के इक्वल. ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है. सो नाउ दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30 40 50, then we have 60 70 and 75. 70, I'm sorry, 80. 70 and 80. Now we need to plot 55 and 100. So just look here. This is 55. This is 100. I'm so sorry, 80. Then we have 90. Highest हमारा कितना था? 100. So sorry. Okay. Now last है हमारा 100. So 55 and 100. 55 and 100 ऐसे. यानी जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें जो ऊंचाई ड्रॉ करेंगे वो ऊपर से नीचे आएगा, और जब हम लेस देन कर बना रहे थे तो वो नीचे से ऊपर जा रहा था, राइट. ओके, सो दिस इज 100. देन वी हैव 55 60 90. 60 पे 90, 60 पे 90. लेट्स से यहाँ पर है. बेटा आई एम नॉट यूजिंग ग्राफ, यू नीड टू शो इट टू मी, है ना. Then we have 90 on 65, and then we have 90. I'm just taking it here. Then we have 70 78. 70 है हमारा, 78 पे let's say here. Then we have 75 60. It's like that. इसको join करेंगे. Free hand से we are going to join, and this is the curve which we are going to get. इसको क्या बोलते हैं? More than type cumulative frequency distribution, and its graphical representation which we call ogive. Okay, which we call ogive like this. Now इससे भी हमको अगर median निकालना है, how do we do that? Just look here. median कैसे निकालेंगे?
सेम n अपॉन 2 करेंगे यानी 100 अपॉन 2 विच इज 50। y एक्सिस पे देखेंगे 50, ये रहा 50। ओके, ये इसके रिस्पेक्ट में वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग द कर्व। कहाँ पे कट कर रही है कर्व को, जहां पर भी कर्व को कट कर रही है उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी आवर मीडियन। जैसे अभी मुझे आई एम नॉट श्योर कि 70 टू 75 बिकॉज मैंने ग्राफ नहीं लिया है, तो बिटवीन 70 टू 75 इट्स लाइक दिस, है ना। सो यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी आवर मीडियन, है ना। कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं ड्रॉ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप हो जाए इन सेम ग्राफ, तो आप सेम ग्राफ में दोनों चीजें बनाओगे, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप बोथ, राइट। ओके, एंड वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। यानी कि जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें मोर देन बन गया, ऐसे ही आप लेस देन भी बनाओगे। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, वो ऊपर से नीचे जाएगा। अगर हम लेस देन टाइप भी इसी में बना दें, एक नई टेबल बना के, और लेस देन टाइप को अगर हम सपोज प्लॉट करते हैं, लेट्स से प्लॉट करते हैं, तो वो ऐसे जाएगा। लेट्स से कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, तो वो कहीं नीचे से ऊपर जाएगा, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी आवर मीडियन, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू। Beta, I want every one of you to just draw all the ogives and send it to me personally. Okay, I'll just check, and if you will have doubt, I'll just explain this thing in live class. Okay, now I just want to discuss one more thing, empirical relationship between mean, mode and median. That's what I want to discuss. Okay, so empirical relationship between the three measures of central tendency, mean, mode, median, कैसे एक दूसरे से connected है, I'm just explaining that. एक equation है which connects mean, mode and median, right? तो वो क्या equation है, that's what I'm explaining. Just have a look here. This is 3 median is equals to mode plus 2 mean. यानी मीडियन, मोड और मीन कैसे कनेक्टेड है, थ्रू दिस इक्वेशन 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, नाउ देखो ग्रुप डेटा कई बार हमको दिया हुआ होता है, उसमें क्लासेस इक्वल नहीं होती है ना, क्लासेस इक्वल नहीं होती है, उस केस में भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, बट वो अभी हमारे 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, सो 3 median is equals to mode plus 2 mean, right? This is the empirical relationship between mean, mode and median. All right, so that's it for now. Okay, now next chapter which we will be starting is area related to circles. Thank you.